Good morning, class 11 commerce, accountancy. The topic is journal entries. Various topics we have done, like introduction of capital in the business, purchase of goods in cash and credit, sale of goods in cash and credit, expenses paid, income received, money withdrawn for personal use, various banks entries, then bad debts recovered, opening entry. All these various topics in journal entries we have discussed. Today we are discussing another topic, outstanding expense. As the name indicate, outstanding. The outstanding means which is occurred but not paid yet. Occurred means the expense took place in the business but we have not paid yet. हमने उसको अभी तक paid नहीं किया. For example, any employee is working in our organization. His salary, he has worked for the month of April but we did not pay his salary. Occurred means अप्रैल का उसने काम कर लिया तो वो अप्रैल की सैलरी को डिजर्व करता है. That's why I am using the word which is occurred, that is which is happened but not paid yet. जो हमने पे नहीं की है, that is outstanding, due, जो due है अभी तक. तो my question to you is, he has done the work. Is it expense or not? Yes, it is expense. And we have not paid him yet. We have not paid him yet. अभी तक हमने वो सैलरी उसको पे नहीं की है. तो will we pay it in future or not? क्या ये सैलरी हम उसको फ्यूचर में देंगे या नहीं देंगे? I think your answer should be yes, we have to pay it. It means if we have to pay it, it becomes our liability. It becomes our liability. One time it is our expense. एक बार तो ये हमारा expense हो गया because the person has done the work for that year. It means we have to pay. But we have not paid. That's why it is our liability. So what is the journal entry for it? Salary account debit. Because it is our expense. क्योंकि हमारा क्या है? Expense है. Two outstanding salary. Why I am crediting two outstanding salary? Because it is my liability. क्योंकि मेरी ये क्या है? Liability है. And liabilities are always credited. Liabilities हमेशा क्या होती हैं? Credit होती हैं. So this is the meaning of outstanding salary or outstanding expense. Any expense which is occurred in the business but have not paid by us till today, जो आज तक हमने पे नहीं किया है, it means we have to pay it in future. ये हमारा expense है, ये इस साल का expense है. That's why I am debiting salary account. And two outstanding salary because I have not paid yet, it is my liability. Always remember, assets always debit if they increase. अगर वो increase होती हैं तो assets हमेशा debit होती हैं. Liability always credit if they increase. Liability जब जब बढ़ेंगी debit होंगी. Expense always debit if they increase. Expense जब जब बढ़ेंगे debit होंगे. And income always credit जब increase होगी. अब आप देख लो मैंने expense को debit किया है ना, expense debit होंगे, increase मेरा expense बढ़ रहा है, that's why debited. मैंने liability को credit किया है, my liability is increasing, that's why liability credit always when increase I have credited. मेरी liability बढ़ गई इसलिए मैंने इसको credit किया है. I think you are getting the meaning of it. And reverse will be the case when they are decreasing. अब ये तो मैंने कहा कि ये सब बढ़ रही हैं, then we will do this. If they are decreasing, it will be reverse. ऐसा बढ़ रही है डेबिट करेंगे, कम हो रही है क्रेडिट कर देंगे. Liability बढ़ रही है क्रेडिट करेंगे, अगर कम हो रही हो तो डेबिट. In this way we will do it. Example I have given. Why I debited salary? Because it is my expense and expense is increasing. Why I credited my outstanding salary? Because it is my liability. मैंने पैसा दिया नहीं है. I have to pay it in future. My liabilities are increasing. I think this is meaning is clear for this particular term. Now let us come for the next term, prepaid expense. What is the meaning of prepaid expense? The expenses which are paid in advance. जो expense हमने advance में पहले से ही दे दिए हैं. That is which have paid for next year. जो हमने अगले साल के दे दिए हैं. Those expenses are known as prepaid expense. जैसे for example आप मेरे से for example ट्यूशन पढ़ रहे हो. आज आपने मेरा ट्यूशन ज्वाइन किया. मैंने आपको कहा कल मेरे को 3 महीने की फीस आप दे देना. आपने लाके दे दी मेरे को 3 महीने की फीस.
ट्यूशन आप कल से स्टार्ट कर रहे हो, तो आपके जो 3 महीने की फीस है वो मेरे पास क्या हो गई, एडवांस हो गई। दिस इज नोन एज प्रीपेड एक्सपेंस, यू हैव पेड इट इन एडवांस, आपने मुझे वो पैसा एडवांस में दे दिया, राइट। तो दिस इज नोन एज द एक्सपेंसेस व्हिच आर पेड इन एडवांस, दैट इज फॉर नेक्स्ट ईयर। नाउ when we are paying expense, what entry do we pass? Suppose I have paid insurance, तो इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, किसी भी एक्सपेंस को पेड करने की एंट्री यही पास करते हैं ना अपन, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2500 2500। अब हमने 2500 रुपए का इंश्योरेंस पेड किया, हमें पता लगा इस 2500 रुपए में 500 रुपए इंश्योरेंस एडवांस में दिया हुआ है हमने। आउट ऑफ दिस 2500 we came to know that rupees 500 insurance premium has paid for next year. It means this 500 which is included in it is paid for next year. तो 500 रुपए का इंश्योरेंस जो नेक्स्ट ईयर का है वो किस ईयर का एक्सपेंस हुआ माय डियर, नेक्स्ट ईयर का हुआ। हमने कब दिखा दिया, उसको आज ही दिखा दिया। इज इट राइट और रॉन्ग? अगले साल के खर्चे अगर मैं आज दिखाता हूं, इज इट राइट और रॉन्ग? इट इज रॉन्ग, ये गलत है पूरी तरह से। इस साल के अकाउंट में वी विल शो ओनली दिस ईयर एक्सपेंडिचर, नॉट ऑफ फ्यूचर। इस साल के अकाउंट्स में मैं इस साल के एक्सपेंस दिखाऊंगा, न कि फ्यूचर के। तो आई हैव डेबिटेड इंश्योरेंस बाय 2500, नाउ आई नो दैट 500 आर मोर डेबिटेड, नाउ आई विल क्रेडिट टू इंश्योरेंस 500 रुपीस। मैं ये 500 रुपए इंश्योरेंस क्रेडिट कर दूंगा। क्यों कर दूंगा? क्योंकि मैंने यहाँ पर 2500 रुपए इंश्योरेंस डेबिट कर दिया, जिसमें 500 रुपए ज्यादा डेबिट है, एक्सपेंस ज्यादा से डेबिट है। मैंने अभी बताया था एक्सपेंस बढ़े तो डेबिट कर दो, अगर कम करना है तो क्रेडिट है। अब आई हैव टू रिड्यूस दिस 500 एक्सपेंस, तो हाउ टू रिड्यूस? बाय क्रेडिटिंग टू इंश्योरेंस। अकाउंटेंसी में ऐसा नहीं होता है, मुझे पता लगा इसमें 500 ज्यादा डेबिट है तो मैं इसको रबड़ से इरेज करके या काट करके इसको 2000 कर दूंगा। नो, इट इज नॉट अलाउड। यू हैव टू पास एन रिवर्स एंट्री टू मेक द करेक्शन। आपको करेक्शन करने के लिए रिवर्स एंट्री पास करनी पड़ती है, right? Now to insurance I think clear. Now why prepaid expense debit? Something paid in advance is my assets or not? अगर मैंने वो कोई चीज आपको एडवांस में दे दी है तो वो मेरी एसेट्स होगी नहीं होगी? जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था, आपने मुझे 3 महीने की फीस एडवांस दे दी, मैंने आपको 1 महीने ट्यूशन पढ़ाया, आफ्टर 1 मंथ आई सेड आप आई एम नॉट एबल टू टीच यू नाउ, किसी कारणवश मैं आपको पढ़ा नहीं सकता, तो क्या आप मुझसे वो 2 महीने की फीस बची हुई वापस मांग सकते हो या नहीं मांग सकते? आई थिंक योर आंसर विल बी यस, you can demand because it is your assets. So out of this 500 I have paid for advance, so it becomes my asset. So prepaid expense debit because it becomes my asset. ये 500 रुपए मेरी क्या बन जाती है? assets बन जाती है। तो what is entry for prepaid expenses? Prepaid expense account debit या prepaid insurance account debit to insurance. Meaning is clear? Okay, next depreciation. What is the meaning of depreciation? आज आप कार खरीद के लाते हो, 5 लाख रुपए की कार खरीदी, 1 साल आपने उसको लगातार यूज किया, 1 साल के बाद क्या उसकी वैल्यू 5 लाख रह जाएगी क्या? नहीं सर, आफ्टर 1 ईयर इट्स वैल्यू विल रिड्यूस। नॉट कार, आप कोई भी एग्जांपल ले लो, आपने एक बिल्डिंग बनाई, आज वो बिल्डिंग आपकी बनने में 50 लाख रुपए खर्च हुए, 5 साल बाद क्या उसकी वैल्यू 50 लाख रुपए रहेगी क्या? चांसेस कम है। क्यों? जितनी भी फिक्स्ड एसेट्स होती हैं, whenever we use our fixed assets, their value keep on reducing. Fixed assets की वैल्यू कम होती रहती है because of its wear and tear. wear and tear का मतलब होता है उनको जैसे जैसे यूज करेंगे उनमें कमी आती जाएगी, उसमें टूट फूट होगी, उसमें कुछ खर्च होगा, उसकी वैल्यू डिक्लाइन जाएगी। बिल्डिंग जितनी पुरानी होती जाएगी उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। जमीन की वैल्यू बढ़ सकती है बट बिल्डिंग की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम, क्योंकि बिल्डिंग में पेंट कर रखा है वो भी खराब होएगा, कहीं उसके अंदर सीपेज यानी नमी भी आ सकती है, तो वैल्यू बिल्डिंग की नहीं बढ़ेगी, कम होगी। आपने यू हैव योर फैक्ट्री इन विच यू हैव 10 मशीन्स, आप डेली मशीन को यूज कर रहे हो, तो क्या मशीन की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी? नो, बिकॉज ऑफ वेयर एंड टियर देयर वैल्यू विल कीप ऑन डिक्लाइनिंग। तो दिस रिड्यूसिंग इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज नोन एज डेप्रिसिएशन। ये जो फिक्स्ड एसेट्स की कीमत में कमी आती है इसी को हम क्या नाम देते हैं? डेप्रिसिएशन का नाम देते हैं। तो यहाँ फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, डेप्रिसिएशन इज आवर एक्सपेंस, ये डेप्रिसिएशन हमारा क्या है? एक्सपेंस है, बट दिस एक्सपेंस वी आर नॉट पेइंग टू आउटसाइडर्स, ये एक्सपेंस हम किसी बाहरी व्यक्ति को पेड नहीं कर रहे हैं।
Why I debited it? Depreciation account debit because it is my expense. Why it is my expense? Because value of my fixed assets decreases. लैंड के ऊपर कभी डेप्रिसिएशन नहीं लगता माय डियर फ्रेंड्स. ऑलवेज रिमेंबर वी विल नेवर चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन लैंड. व्हाई इट इज सो? बिकॉज लैंड की वैल्यू कभी कम नहीं होती है. आइदर लैंड कैन बी यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस और इट कैन बी यूज्ड फॉर कमर्शियल पर्पस. राइट? So depreciation account debit because it is my expense. Just I told you we will never pay depreciation in cash. Then what to credit? To fixed assets. To fixed assets. Why I am crediting fixed assets? Because value of my fixed assets reduces. मेरी fixed assets की value क्या हो रही है? Reduce हो रही है. क्योंकि मैं उसको लगातार use कर रहा हूँ. I told here assets always have debit balance. But when they increase, अगर एसेट डिक्रीज होती है तब उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे. इफ वैल्यू ऑफ एसेट्स डिक्रीज वी विल क्रेडिट देम. तो हियर एंट्री बिकम्स डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स. डेप्रिसिएशन बिकॉज़ इट इज माय लॉस एंड फिक्स्ड एसेट्स बिकॉज़ वैल्यू ऑफ माय फिक्स्ड एसेट्स रिड्यूसेस. नाउ अनदर ट्रांजैक्शन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. You all know what is the meaning of capital? The amount which is introduced by owner in the business. जो पैसा ओनर के द्वारा बिजनेस में लगाया गया है वो हमारी क्या होती है? कैपिटल होती है. नंबर 1. नंबर 2, वेयर डू वी पास ऑल दीज एंट्री? वी पास दीज एंट्री इन बुक्स ऑफ बिजनेस. हम सारी की सारी एंट्री किसकी बुक में पास करते हैं? बिजनेस की बुक में. इट मींस बिजनेस हैज टेकन अ काइंड ऑफ लोन फ्रॉम ओनर. इज इट और नॉट? जो पैसा मालिक ने बिजनेस में लगाया है इसका मतलब क्या हुआ? बिजनेस ने एक प्रकार से मालिक से एक प्रकार से लोन ले लिया. तभी तो हम कैपिटल को क्रेडिट करते हैं क्योंकि ये भी हमारी क्या होती है? लायबिलिटी. किसकी लायबिलिटी होती है? ये बिजनेस की लायबिलिटी होती है. बिजनेस इस कैपिटल पर पैसा कमा करके किसको देगा? ओनर को देगा. आई थिंक यू आर गेटिंग मी. नाउ हियर हु हैज गिवन मनी? ओनर हैज गिवन दिस कैपिटल. ओनर हैज गिवन दिस कैपिटल. एंड हु यूज्ड दिस कैपिटल? बिजनेस यूज्ड दिस कैपिटल. बिजनेस ने वो पैसा यूज किया है. नाउ टेल मी, मैं अगर आपसे लोन लूं, 5 लाख रुपए का मैंने आपसे लोन लिया, आपने मुझे लोन दे दिया, तो पैसा मैं यूज कर रहा हूं तो इंटरेस्ट कौन देगा? आपको. मैं ही दूंगा ना. तो हियर हु हैज टेकन मनी? हु इज यूजिंग दिस मनी? बिजनेस इज यूजिंग दिस मनी. हु विल पे इंटरेस्ट? बिजनेस विल पे दिस इंटरेस्ट. तो फॉर बिजनेस इट इज एक्सपेंस. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट. Why I am debiting it? Because this is expense for the business. क्योंकि ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है. क्यों है एक्सपेंस? Reason I told you. Capital is given by owner in the business. Who is using this capital? Business is using this capital. The person who is using this capital will pay interest on it. That's why it is expense. Now to capital account. To capital account. Why I am crediting capital? The reason being is बिजनेस पैसे को यूज कर रहा है, वो इंटरेस्ट भी देगा, लेकिन बिजनेस ओनर को ये इंटरेस्ट कैश में नहीं देगा. रिमेंबर, बिजनेस इसको कैश में नहीं देगा क्योंकि ओनर इज नॉट आउटसाइड पार्टी. ओनर आउटसाइड पार्टी नहीं है. बैंक से लोन लेंगे, हमें इंटरेस्ट कैश में देना, इंटरेस्ट पैसा देना पड़ेगा, बट यहाँ कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं देंगे. बैंक तो आउटसाइड पार्टी है बट ओनर इज नॉट आउटसाइड पार्टी. ओनर के साथ जो भी चीज उसको देनी है या लेनी है उसको उसकी कैपिटल में से ऐड या लेस किया जाता है. हियर हु विल गिव इंटरेस्ट? बिजनेस विल गिव. टू हुम? ओनर. ओनर को जब उसकी कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा तो उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी, उसकी कैपिटल में हम वो इंटरेस्ट ऐड कर देंगे. दैट्स व्हाई टू कैपिटल अकाउंट. इसलिए मैंने यहाँ पर कैपिटल अकाउंट को क्या किया है? क्रेडिट किया है. आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग इट सर. नाउ लेट अस डू न्यूमेरिकल. वी विल डू वन न्यूमेरिकल ऑन इट सर. Illustration number 15. We will be doing now illustration number 15. Page number 9.33 in my book. Page number 9.33. Illustration number 15. Page number 9.33. Here it is given. Salary due to clerk. Salary due to clerk. Rupees 50,000. Now salary is our expense. That's why salary account debit.
सैलरी अकाउंट डेबिट टू ड्यू है, अभी तक नहीं दी है, देनी बाकी है, इट मींस इट बिकम्स आवर लायबिलिटी। तो टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 50,000 50,000। Why salary debited? Because it is expense for me. Why outstanding salary credited? Because it is liability for me. Narration: being salary due, being salary due, being salary due means salary did not pay. Next entry: out of the rent, out of the rent paid this year rupees 10,000, rupees 10,000 belongs to next year, belongs to next year. This is transaction number 2 dear friends. Out of the rent paid this year, इस साल हमने जो रेंट पेड किया है उसमें 10,000 रुपए belongs to next year। 10,000 रुपए किससे बिलोंग करता है? अगले साल से। तो when expenses belong to next year, it becomes our prepaid expense. So what is our entry? Prepaid expenses account debit, prepaid expenses account debit, that is prepaid rent account debit, because it is my assets, because I have paid it in advance। जो भी चीज मैं किसी बंदे को एडवांस पे कर देता हूं वो मेरी एसेट्स होती है। टू रेंट अकाउंट, टू रेंट अकाउंट 10,000 10,000। Why I have credited rent? जब मैंने रेंट की एंट्री पास की होगी तो रेंट को मैंने 10,000 रुपए से ज्यादा से डेबिट कर रखा है। नाउ आई एम क्रेडिटिंग दिस रेंट 10,000 being rent paid in advance. Then narration will be being rent paid in advance. Let us take another example, sir. Next entry, third entry. Now third entry is provide 10% depreciation on furniture of rupees 50,000. Furniture value is 50,000, and on that furniture we have to pay the 10% depreciation. When I will be charging 10% depreciation, as I told in my just theory, depreciation is loss for us. That's why depreciation account debit, depreciation account debit 2. We are charging depreciation on furniture. Furniture is our assets. The value of assets is increasing or decreasing? Decreasing. To furniture, 50,000 into 10%, it becomes 5,000 rupees. 5,000 rupees. Narration will be being 10% depreciation charge on machine. पहले फर्नीचर 50,000 का था, मैंने 5,000 से क्रेडिट कर दिया, अब फ्यूचर में फर्नीचर कितने का रह गया? 45,000 रुपीज। राइट? नेक्स्ट एंट्री सर, नेक्स्ट एंट्री इज provide 12% interest on capital of rupees 10 lakh. Provide 10% interest on capital. We have to give interest on capital 12%. And what is the amount of capital? 10 lakh rupees. As I told you, who has introduced this capital in the business? Owner. Who is using this capital? Business is using. तो business is using, it means business will pay interest on it. So interest is expense for the business. Interest on capital account debit 2. I told you interest will not be given by business to owner in cash. Interest on capital बिजनेस के द्वारा ओनर को कैश में नहीं दिया जाता, उसकी कैपिटल में ऐड हो जाएगा सर। तो टू कैपिटल अकाउंट 1,20,000, 1,20,000। ये 1,20,000 कहां से आ गया सर? 10 लाख इंटू 12%। 1,20,000 ये मेरा एक्सपेंस हो गया और ये मेरी कैपिटल क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। अब फ्यूचर में मेरी कैपिटल 10 लाख की पहले थी, 1,20,000 का इंटरेस्ट मिल गया मेरे को, तो टोटल कैपिटल कितनी होगी मेरी? 11,20,000 रुपए हो गई। क्लियर? नेक्स्ट एंट्री, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ रुपीज 8,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का उल्टा है सर, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कैपिटल पे इंटरेस्ट बिजनेस ने दिया था, ड्राइंग पे इंटरेस्ट बिजनेस को मिलेगा। व्हाई? बिकॉज हु हैज डन द ड्राइंग? ड्राइंग कौन करता है? ओनर करता है, बिजनेस में से पैसा निकालता है। तो
तो here who has used this money, यहाँ इस पैसों को यूज किसने किया, ओनर ने किया। तो who will pay interest, इंटरेस्ट कौन देगा, ओनर देगा। तो for business it is income, तो to interest on drawing, ये हमारी क्या हो गई, इनकम हो गई। तो डेबिट किसको करें, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट 8000 रुपए। व्हाई ड्रॉइंग डेबिटेड, जैसे मैंने यहां बताया था आपको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल में क्रेडिट हो जाएगा यानी ऐड कर देंगे, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को कैपिटल में से कम कर देंगे। ड्रॉइंग को डेबिट करें या कैपिटल को डेबिट करें, मीनिंग दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा, मीनिंग दोनों का सेम रहेगा। तो ये एंट्री ऊपर वाली की रिवर्स हो जाएगी। तो दिस इज वन मोर केस एंड द लास्ट एंट्री इज, last entry which I told you yesterday or in my previous lecture, bad debts recovered, bad debts recovered entry is rupees 20,000 received which were written off as bad debts last year from Subhas. Let us try to understand. Rupees 20,000 rupees, 20,000 रुपए मिले, which were written off as bad debt, जिनको हमने लास्ट ईयर बैड डेब्ट मान लिया था, और वो पैसे किससे मिलने थे, सुभाष से मिलने थे। तो लास्ट ईयर हमने जब बैड डेब्ट्स हुआ होगा तो क्या एंट्री पास की होगी माय डियर फ्रेंड्स, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू सुभाष, ये मैंने एंट्री लास्ट ईयर पास की होगी। व्हाई बैड डेब्ट डेबिटेड, बिकॉज इट इज लॉस फॉर मी। व्हाई सुभाष क्रेडिटेड, क्योंकि जब मैंने सुभाष को माल बेचा होगा तो सुभाष को डेबिट किया था, अब उसको क्रेडिट कर दिया, उसका अकाउंट सेटल हो गया। अब अगले साल सुभाष ने क्या कहा कि आई विल पे माय बैड डेब्ट मनी, जो मैंने पिछले साल पैसा नहीं दिया था वो आज मैं दे रहा हूं, तो ही इज पेइंग, तो व्हाट इज कमिंग टू अस, कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट टू, मेरा डूबा हुआ पैसा वापस आया है सर, इट बिकम्स माय इनकम टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। यहां सुभाष से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सुभाष का अकाउंट लास्ट ईयर क्या हो चुका है, क्रेडिट हो चुका है, खत्म हो चुका है। जब हमने उसको गुड्स बेचा था तब हमने एंट्री पास की थी सुभाष अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सुभाष को डेबिट किया था। जब उसने पैसा नहीं दिया तो मैंने सुभाष को क्रेडिट कर दिया, तो उसका अकाउंट नलिफाई हो गया, डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल हो गया। अब वो पैसा मुझे वापस दे रहा है तो मुझे सुभाष से मतलब नहीं है, मेरा डूबा हुआ पैसा वापस आया है, जो मैंने यहाँ लॉस माना था वो मेरा पैसा वापस आया है, तो आई विल बी क्रेडिटिंग टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। So these were few new entries today in your chapter journal entries. Thank you.